Assalamualaikum. Welcome to BizConnect with Noreen Ghaffar. और आज जो टॉपिक के साथ हम आए हैं दैट्स ऑर्गेनाइजिंग हाई एंड इवेंट्स, और इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए आपके साथ बात करने के लिए हमें बुलाया है सबीन अब्दाल, सीजन्ड एंटरप्रेन्योर एंड शी इज द CEO ऑफ इंटरफिट इवेंट्स, और इतना फैंटास्टिक काम कर रहे हैं ट्विन सिटीज़ के अंदर कि इट वाज वेरी मैंडेटरी कि किस तरीके से इन्होंने ये आइडिया नर्चर किया। मैं उनको इसलिए रिक्वेस्ट किए कि वो हमारे शो में आए। सबीन, वेलकम टू द शो। थैंक यू। इट्स सो हार्टनिंग टू विटनेस कि आज मैं आपके साथ बैठ के यहाँ पे विल टॉक अबाउट इंटरफिट इवेंट्स जो आपने स्टार्ट किया था 2015 में, बिकॉज इट्स वन ऑफ अ काइंड, और बहुत कम ऐसे इवेंट्स आप देखते हैं फ्रॉम अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि क्या चीज़ दिमाग में थी, यू नो, when you started के high end, because it's, you know, it's high end. A lot of people get also very worried कि हम वहाँ कैसे जा सकते हैं, तो एक थोड़ा सा एक वो आपने ऑरा क्रिएट किया हुआ है उसका। So basically, to be honest, when we started, हमारे माइंड में इतना कुछ था नहीं। हमने तो एक वन ऑफ करके बस एक कर लिया कि there's so many businesses and there's no platform for them to showcase. Right. Now with like the inflation which is like rising and people can't really afford storefronts, and there's so many Instagram businesses Right. who don't know where to showcase. Right. And even if they have like a few events happening here and there, the clientele is not the best for them to be showcasing there. ठीक है। So starting in 2015, one off करके हमने कर लिया. This was like just it came out of nowhere, to be honest. And eventually करते करते mashallah now we do 6 events a year in Islamabad, and then we're expanding to Lahore and Pindi. Want to take it to Karachi. Right. And inshallah very soon overseas, maybe also the Middle East. Okay, that's so wow. मतलब जब मतलब वैसे ही आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर ऑब्वियसली रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया होगा। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया मेरे माइंड में ये था कि there is no platform, because I used to do clothing back then. मैं घर पे एक मेरा fashion clothing line थी। ठीक है। And I didn't have too many platforms per se in Islamabad to showcase. ठीक है। You know, वो एक गिने चुने एक दो थे, इसके अलावा इतने नहीं थे। So this was something that was missing, I felt. And one off मैंने उस वक्त एक try मार लिया कि चलो, you know, I'll get a few people on board and do an exhibition. ठीक है। And it turned out to be a big success. Yeah. So after that, then, you know, from once a year, now it's 6 times a year. Right. तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए होंगे आपने ना, कि ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने फुलफिल करने हैं थ्रू। एक तो आपने बता दिया कि देयर वाज नो प्लेस टू शोकेस, क्योंकि आपने खुद विटनेस किया कि ये गैप है, एंड देन यू क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी। Yes. तो जैसे आपने स्टार्ट किया, आप चूंकि फ्रॉम 1 ईयर से लेके आप 6 टाइम्स इन अ ईयर आप करते हैं, तो उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स रिटर्न डाउन आपने किए कि ये ऑब्जेक्टिव्स हमने करने हैं, ये हमारे वेंडर्स होने चाहिए, हाँ, ये सारा कुछ, क्योंकि आपको टारगेट ऑडियंस भी तो अपनी डिफाइन करनी होती है ना। एक तो हमारा ये था, we didn't want to restrict our brands to just clothing or just jewelry. Like मुझे अभी भी बहुत लोग कहते हैं आप सिर्फ क्लोथिंग का करें, सिर्फ एक फर्नीचर का करें, सिर्फ एक आप अलग करके फूड का करें. I don't want to do that. Because what this does is, because it has a bit of everything. Yes. So when there's everything under one roof, खाने से लेके, कपड़े से लेके, फर्नीचर से लेके, even like tech startups Yes, have you know, absolutely. exhibited with us. So it kind of like becomes a event for everyone to just come and see. Even if you don't want to buy anything, you might want to eat something, and then when you're there, you might like something. Yeah, absolutely. So, and also the second thing that I was really trying to like push in this event was that I wanted it to be a family event. So Right. in this event, you'll see like a grandfather with a little, you know, child in his arms. Right. So it's nice to see कि, you know, ये startups हैं, ये अपनी चीजें दिखा रहे हैं और एक family environment बनी हुई है। ठीक है। तो मतलब आपकी जो थीम है, जी, जो स्पेसिफिक थीम फॉर द इवेंट आप जितनी भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें आप फैमिली, we encourage families. यू एनकरेज फैमिलीज ओनली। Yes. राइट। जब भी ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, इट्स अ वेरी कम्बरसम जॉब। सारे इवेंटर्स को इन्वेस्ट करना, फिर फिल्टर करना किसको हमने जगह देनी है, किसको नहीं देनी है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक ज़ाहिर बजटिंग का एलिमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सो आप किस तरीके से बजटिंग वाला इम्पैक्ट? हमारे देखते एक्चुअली हो? हर इवेंट का एक अलग बजट होता है जो हम Right. शुरू से एक बजट रख लेते हैं, और फिर उसी के अंदर वी हैव टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि ये इवेंट उसी बजट के अंदर होना है, ठीक है। और वो हर इवेंट का एक अलग बजट बनता है। सो उसके लिए देयर इज नो स्पेसिफिक फिगर आई हैव, बट इट्स सेपरेट फॉर एवरी इवेंट डिपेंडिंग कि किस में ज़्यादा खर्चा है।
ठीक है, मतलब आप उसमें सारे की कंपोनेंट्स ऐड ऑन करके एंड देन यू टेक आउट कि भाई इतना बजट तो होना ही होना है ना मिनिमम बजट, हाँ, और फिर उसके ऊपर नीचे लाइक वी डोंट गिव आवरसेल्व्स टू मच ऑफ अ मार्जिन बिकॉज वी डू इट सो ऑफन कि अगर यू नो वंस अ ईयर होता तो मैं कर भी लेती, बट नाउ बिकॉज इट्स एवरी 2 months तो हमारा बस एक सेट बजट होता है जिसमें हमने अकोमोडेट करना होता है. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. कोई ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जो आप बजटिंग में यू वांट कि इसकी तो बजट होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी, कोई ऐसे की फैक्टर्स? Yeah, like जिस तरह गर्मियों में there has to be coolers and fans because this is the whole concept of the event is an outdoor event. Right. हमने एक दो दफा मार्कीज में करके देखा है इस्लामाबाद में, but that didn't give the same vibe. This is an outdoor vibe. Right. तो जब हम summers में करते हैं then we have to get coolers and fans and you know air conditioning basically. Right. और जब हम winter में करते हैं तो bonfire या heaters ये तो must है. इस पे हम ये नहीं कह सकते. compromise. There is no compromise and there can't be because you know you want कि जो guests आ रहे हैं उनका एक pleasant experience गुजरे. बिल्कुल, absolutely ऐसे. आप लोगों के लिए तो मैंने ये भी देखा है कि अगर all of a sudden a rain forecast is there तो आप लोग बहुत quickly वो बजट के अंदर अपने उसको foreign से canopy and date भी change करते हैं. अगर हमें पहले पता चल जाए क्योंकि forecast is very dicey. अगर हमें 2 दिन तक भी पहले पता चल जाता है हम डेट चेंज कर लेते हैं, मगर उस दिन के लिए we have a little bit of like canopies and ये backup plans होते हैं. कोई cost saving any cost saving priorities in your list की कोई ऐसी चीज है कि हम margins थोड़े से अपने कर लें? कोई ऐसा event कभी गुजरा? जिस तरह अभी I mean I want to implement ये some entertainment in the event, right? Okay. Like कोई popular singer आ जाए या कोई, वो अभी हम कर नहीं सक रहे because that's very expensive. Right. So that is something that perhaps maybe in the later event I'll look into कि you know side पे कोई घंटे के लिए आके performance कर दे. ठीक है. की नहीं है हमने पहले, but those haven't been like really big, high, you know, very popular singers. Right. But my aim is to eventually, you know, have someone like that जो आकर जरा सा audience को भी, you know, engage करे बहुत ज़्यादा. हाँ. अब चूँकि events के अंदर सबसे important और crucial element होता है the venue. ठीक है, तो वेन्यू में आपने मार्कीज में भी ज़ाहिर किया था तो उसमें कोई इतना प्रॉमिसिंग आई थिंक फीडबैक भी नहीं आया ना, एंड विंटर फेट नेवर फेल्ट लाइक विंटर फेट. सो वेन्यू के ऊपर क्या आपका स्टांस है, और वो इतना एम्बेड हो गया आपके ऑडियंस के अंदर कि इट हैज़ टू बी इन दैट पर्टिकुलर एरिया? So usually what we do is कि हमारे 2-3 venues रहे हैं इस्लामाबाद में. ठीक है. एक जो है F8 में there's a garden we do it there, और then there's a massive garden in Aqs, ये शक्करपड़ियाँ जहाँ हम करते थे वहाँ. That was a very very good venue for us, but unfortunately that venue is closed. Okay. That was like a venue we would have stuck to. मगर वो unfortunately वो बंद हो गया है, वरना we've also tried PNCA. Our actually main aim is कि कोई central जगह हो. We don't want to like go दूर दराज कोई you know. तो बस main जो हम अपने mind में रखते हैं वो ये भी रखते हैं कि कोई central venue हो. Okay. क्योंकि उसमें कंसिडरेशन आपको पार्किंग एंड देन पार्किंग एंड ऑल्सो इट्स इजी फॉर पीपल टू कम टू F8 और F7 F6 रादर देन कि मैं किसी फार्म में बनी गाला या चक शेजाद में कर लूँ. ठीक है. क्योंकि फार्म हाउसेज में आपको जगह तो बेशक बहुत बड़ी मिल जाती है, मगर वहाँ फिर लोगों का एक्सेस टू पीपल इज ओके. आप अपने जो ऑडियंस हैं या जो आपके गेस्ट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में रखती हैं चीज़ें. उनका और वेंडर्स दोनों का रखना पड़ता है. दोनों का रखना पड़ता है क्योंकि वेंडर्स तो वन टाइम आई मीन आगे सेटल हो गए, आउट ऑफ सिटी भी आते हैं ना. वेंडर्स का ये है कि यूजुअली माय वेंडर्स आर नॉट वन टाइम. सो मेरे तो जो 2015 से मेरे साथ एग्जिबिट कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी हु आर टिल डेट एग्जिबिटिंग विद मी, एंड एक्चुअली देयर फीडबैक मैटर्स अ लॉट टू मी बिकॉज वो तो डे 1 से मेरे साथ थे. जी बिल्कुल ऐसे है. सो उनको मैं बहुत यू नो क्लोजली उनसे अंडरस्टैंड करती हूँ कि कहाँ लैक मैं कर रही हूँ, कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ. ठीक है. या तो क्या जो फीडबैक की आपने बात की तो क्या ऐसा फीडबैक है जिसने यू नो दैट यू नो कीप्स यू पुशिंग टू डू इट अगेन एंड अगेन? I think usually it's just that a lot I've gotten very good feedback जिसमें you know ये जो small businesses हैं mostly also a lot of I think more than 80% of my vendors are women owned businesses. Right. तो you know इनके पास और प्लेटफॉर्म नहीं है, इधर आते हैं you know इनकी इतनी नेटवर्किंग होती है, ये इतना सेल होती है, so it makes me feel good. Yeah. तो सेल की वजह से दे लाइक इट, और प्लस आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी तो साथ एक्टिविटीज एंगेज करती हो. Facebook, Instagram, all of these places we keep advertising. So how do you know personalize arrangements भी होती हैं आपके ना, क्योंकि गेस्ट लिस्ट है,
कि वो किस तरह से केटर करते हैं, जो पर्सनलाइज इनविटेशंस आप भेजते हैं, सम डिग्नेटरीज या कोई इस तरह Yes. की चीज़ों को केटर करती हो आप? हाँ जी, हमारी होती है एक लिस्ट, हमारी PR की एक लिस्ट होती है जिसमें वी हैव अराउंड 500 कॉम्प्लीमेंट्री इनवाइट्स दैट वी सेंड, ओके, and those people are usually, high level government officials or diplomats, Right. socialites. So unko we send free passes Right. before the event. ठीक है. Yeah. और वो उनका भी बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है कि इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. जी जी. ओके, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स, चूंकि आप प्लानिंग बहुत अच्छी करती होगी ना, यू मस्ट बी राइटिंग एवरीथिंग. Yes, I have everything written down. Right. From my literally first event. फर्स्ट इवेंट. जी. ओके, आप खुद भी वहाँ पे ऊपर चढ़ के और जो है ना, मैं यू तो जस्ट उधर ही मेकिंग द होती- वीडियोस Yes, एंड yes. एवरीथिंग. I have to like fully be there because वो हल्का सा एक चीज इधर से उधर हो जाए, even though I have a team, but they don't know everything, right? Like they'll still come to me Right. to ask me कि इसका क्या है. ठीक So है. there's no way I cannot be there. ओह राइट. तो इतनी एंगेजिंग एक्टिविटी कभी कभी कितने अरसा प्रैक्टिस, मतलब प्लान करना पड़ता है बिफोर द एग्जीक्यूशन? कुछ एंजाइटी होती है आपको जब इवेंट होने वाला है? कितने दिन पहले शुरू हो जाती है, या किस तरह से टैकल करती हो आप उस चीज़ को? मुझे तकरीबन महीना से 1.5 महीना लगता है हर इवेंट की प्रेप्स करने में. ऑलराइट. एंड एंजाइटी तो जाहिर बात है होती है बिकॉज इतने वेंडर्स हैं, इतने लोग हैं, इट्स नॉट अ प्राइवेट इवेंट, पब्लिक इवेंट है. पब्लिक इवेंट है. बारिश की बहुत एंजाइटी होती है, वो तो इट्स ऑलवेज ऑलवेज ऑन योर नर्व्स कि हाँ, बारिश आज हुई, अभी हुई. आई लाफ विद माई फ्रेंड्स. जो मेट ऑफिस है उसमें तो आई हैव बेस्ट फ्रेंड्स ऑल ओवर द वेदर नेटवर्क ऑफिस की मेरी हर 2 मिनट बाद कॉल जा रही होती है, वेदर का बताएं, वेदर का बताएं. ओके. या तो वेदर के लिए ज़्यादा कंसर्न होती हो आप? वेदर की बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है आउट ऑफ ऑल द एंजाइटीज. बिकॉज आपके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेंडर्स आपने रखे हुए हैं. जैसे आपने पहले बता दिया कि यू वांट के हर तरह का वेंडर आए. तो जब 2015 में आपने शुरू किया तो आपने एक सोशल मीडिया कैंपेन में डाल दिया कि हम कर रहे हैं, एवरीबॉडी कैन अप्रोच अस और सारा कुछ. तो कोई क्राइटेरिया फॉर वेंडर्स आपने बनाया है कि ये वेंडर होना चाहिए, एज ऑफ बिजनेस है, या सिर्फ वुमेन इन बिजनेस है, या फर्नीचर है, या क्या चीज़? मतलब वेंडर्स के लिए भी, क्योंकि आपके पास जगह तो ज़ाहिर लिमिटेड है, बिकॉज द वेन्यू इज सो फैंटास्टिक आपका जो है, बट उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ वेंडर्स आ सकते हैं ना. तो कितने वेंडर्स को एक तो आप केटर करती हो, एंड देन उसके ऊपर उन वेंडर्स का क्राइटेरिया क्या है कि कौन होने चाहिए वो वेंडर्स? अच्छा, हमारे तकरीबन डिपेंडिंग ऑन द वेन्यू दैट वी चूज, हमारे तकरीबन होते हैं बिटवीन 80 to 120 वेंडर्स. ऑलराइट. एंड उसमें जो क्राइटेरिया होता है टू चूज, एक तो आई इनकरेज पीपल जिनका बिल्कुल स्टार्टअप हो, उनका कोई एक्सपोजर नहीं है, उन्होंने ना कहीं एग्जिबिट किया है, इस तरह के मेरे इतने जो कोई फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर से आ रहे हैं, दे ट्रैवल बिकॉज उन्होंने ये मार्केट कभी एक्सप्लोर ही नहीं की थी. ठीक है. और तो उस तरह के आई इनकरेज. ठीक है. एंड अदरवाइज हमारा ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 20 स्टॉल्स फर्नीचर को देने हैं और सिर्फ 20 स्टॉल्स क्लोथिंग को देने हैं. ठीक है. जो मुझे उस वक्त लगे कि ये इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और इनको आ जाना चाहिए, आई टेक देम. ओके. तो हमारी शॉर्ट लिस्टिंग होती है. शॉर्ट लिस्टिंग होती है ना, बिकॉज दिस इज व्हाट आई नो कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है. शॉर्ट लिस्टिंग तो होती है, बट वही मैं कह रही हूँ, जो हम उस वक्त देखते हैं कि अच्छा अगर हमें लग रहा है इनका ये काम चलेगा, तो फिर मैं उनको ओके कर देती हूँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच स्पेस आई हैव. ओके. क्योंकि आपकी टारगेट ऑडियंस, आपके जो डेमोग्राफिक्स हैं, उसके आप बहुत अवेयर हैं कि उनको क्या पसंद आएगा. जी बिल्कुल. क्योंकि आपका जो टारगेट मार्केट है प्राइमरीली, वो कौन से लोग आपने डिफाइन किए हुए हैं कि यही मेरी टारगेट ऑडियंस है, जिनके लिए मैंने वो वेंडर्स को अपने पास रखना है. आई मीन वो अपना डिस्प्ले करें, शोकेस करें. टारगेट मार्केट इज मोस्टली द नीश ऑफ द सिटी. एंड इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड, हमारे बहुत से जिस तरह जानने वाले बहुत ज़्यादा आते थे जी. और अब मैं कहूँगी कि जानने वाले तो अभी भी आते हैं, देव ऑलवेज बिन वेरी हेल्पफुल एंड इनकरेजिंग एंड मगर अब रैंडम जो होते हैं, जिनको अब पता चल गया है कि ये एक इवेंट है, ये होता है हर 2 महीने बाद, they actually come and they're proper shoppers. Right. तो वो तो एक full fledged budget लेके आते हैं कि हमने आज विंटर फिट पे इतने पैसे खर्च करके ही जाना है. Okay, that's wonderful. और प्लस आपके फैसिलिटीज भी आपने दी हुई है ना. There's POS also, people bring in POS. फिर आजकल तो इजी पैसा और एप्स के थ्रू भी काफी ज्यादा पेमेंट्स होती है. Actually I'm trying to work on ये ATM on the wheels. Okay. तो आई एम होपिंग, मैंने 1-2 लोग बैंक से बात की हुई है टू मेबी गेट दैट ऑन बोर्ड. फिर वो आसानी हो जाती है, वो बाहर एक
उनका ट्रक खड़ा होता है ATM का, एंड यू कैन ठीक है। जस्ट गो गेट कैश आउट। ओके, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। Yeah. तो क्योंकि वो ये देख रहे होते हैं ना, इट्स अ न्यू थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब से एप्स आ गई हैं, अगर वाईफाई वगैरह आसान अवेलेबल है, है तो वो online भी सारा transfers, कुछ हो गया है। बिल्कुल। ऑनलाइन ट्रांसफर से बहुत फर्क पड़ा है डिजिटाइजेशन पे। ये तो वेंडर्स की बात होगी। जितने भी गेस्ट आते हैं, जो विजिटर्स हैं, आई मस्ट से, क्योंकि आप लोग की तो एक एंट्री फी भी है फॉर द जी। सिक्योरिटी Yes. रीजंस। सो जो गेस्ट आते हैं उनके कंफर्ट के लिए आप क्या क्या चीज़ें टेक केयर करते हो? मतलब गेस्ट फील सो कंफर्टेबल कि वो एक स्टॉल से दूसरे, तीसरे, चौथे जिस भी जगह जा रहे हैं तो वो आराम से उसका व्यू लें और उसके बाद वो जी। इंटरैक्ट करें ज़्यादा। एक तो हमारी काफ़ी मतलब सिक्योरिटी पे हम अपना काफ़ी बजट लगाते हैं। राइट। तो बी ए ट्रैफिक पुलिस और हम्म। लाइक गार्ड्स एंड बाउंसर्स, तो वो हमारा एक बड़ा मेन कंसर्न होता है, बिकॉज हमें ये है कि हमारे इवेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए एक तो वो जो शुरू में भी जब लोग अंदर आ रहे होते हैं, हमारे जो बाउंसर्स और गार्ड्स मेन एंट्रेंस पे ज़्यादा खड़े होते हैं कंपेयर टू अंदर के इवेंट ठीक के है। एरिया में, तो वो गेज कर जाते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही है। अगर उनको कोई नज़र आ जाए कि कोई ज़रा सा मतलब हाँ, थोड़ा सा शेडी है या हाँ, व्हाटएवर, तो वो पहले से ही हमें वार्न कर देते हैं। ठीक है। तो उस पर फिर हम नज़र रख लेते हैं, और अगर हमें बहुत ही कोई शेडी लगे तो फिर हम उनको आने ही नहीं देते। ओके जी। ठीक है। तो ये जो टीम वाली एंगेजमेंट है, जो बाउंसर्स वगैरह, उसमें आप कोई जो मतलब ये तो आपका प्राइवेट सारा सेटअप है ना, तो उसमें आप कोई हमारी जो गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेते हैं फॉर जिस तरह- दैट पर्टिकुलर टास्क या नहीं? जिस जरूरत नहीं पड़ती? ट्रैफिक पुलिस जो होती है उससे तो हम पूरा उनके कोई तकरीबन 12 बंदे होते हैं ओके, जो थ्रू आउट वहाँ खड़े होते हैं, चक्कर ठीक है। लगा रहे होते हैं, ठीक एंड है। दे आल्सो काइंड ऑफ हेल्प विद द वैले एंड द पार्किंग, Right. एंड सिक्योरिटी वाइज वी हायर आवर ओन गार्ड्स, ओके, यू हायर Yes. योर ओन गार्ड्स, ऑलराइट। एंड दे हैव बीन वर्किंग विद अस पिछले 8 साल से। हमारे वही गार्ड्स और बाउंसर्स हैं, तो हम अब उनको काफी ट्रस्ट भी करते हैं। ओके, आपकी टीम मेंबर्स में कौन कौन है? मतलब यू लीडिंग द शो एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर, क्योंकि इसमें तो बहुत भाग दौड़ और जी। लॉट ऑफ थिंग्स। तकरीबन टोटल टू रन द इवेंट हमारे कोई 10-12 लोग होते हैं, जिसमें अब हर किस्म के एक तो हमारे अलग वेंडर्स होते हैं, जिस तरह जो आकर केटरिंग वाले होते हैं, वो ठीक एक है। हमारी टीम है जो पिछले यही 10 साल से चली आ रही है। ठीक है, वो ही हमेशा हमारे इवेंट को आके पूरा करते हैं, ठीक केटर। है, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो लाइटिंग और इलेक्ट्रिक, ये भी पूरी एक अलग टीम है, वो ही हमेशा आके हमारा करती है। तो ठीक वो है। हमने ऑलरेडी अपना वो काम डिवाइड किया हुआ है। राइट, यस। ओके। तो उनके साथ आपका रिटन एग्रीमेंट होता है या फोन पे? हाँ, आई मीन अब इतना ट्रस्ट लेवल हो गया है, क्योंकि अब हम बिजनेस एक साथ पिछले 10 साल से कर रहे हैं, ओके, कि अब पर से हमें इतना कोई मुझे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज हमारा बड़ा अच्छा रेपो बना हुआ है। ओके, मगर कोई नया अगर मैं हायर करूँ, उसके साथ हम ज़रूर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ओके। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल टीम आपने हायर की हुई है जी, for that हमारी particular लीगल, जी reason? जी। क्योंकि कभी ऐसा इंसिडेंट कोई हुआ कि जिसमें इनिशियल लेवल के ऊपर, अभी तो आपका ज़्यादा ट्रस्ट बन गया एंड जी, बहुत ही आप मैनेज करके और Yeah. देखभाल के करते हैं, बट अंडर दैट सिनेरियो अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने किया एंड some exogenous factors arrived and कुछ हो गया हादसा, तो अंडर दैट सिनेरियो ज़ाहिर है उस टाइम पे तो आप कवर करते हैं बिकॉज इवेंट है एंड देन यू हैव टू, तो आफ्टर द इवेंट इज ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद उनके साथ बैठ के Luckily कभी ऐसा हमारा कोई कभी बड़ा इशू हुआ ही नहीं है कि जिसमें हमें एक कोई ऐसी प्रॉब्लम राइज हो गई हो ठीक कि है। हमें बैठ के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो। हाँ, अल्लाह का हाँ। शुक्र है अभी तक अल्लाह का नहीं हुआ। शुक्र है अभी तक। ओके, यू कीप ऑन इसके ऊपर लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर तो आप काम करते ही होगे ना, बिकॉज हाई एंड इवेंट्स नीड द लेटेस्ट ट्रेंड का जो एलिमेंट है इन एवरी एक्टिविटी दैट यू डू। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें व्हाट यू डू टू अंडरस्टैंड द लेटेस्ट ट्रेंड्स? वो तो जिस तरह जो एक्चुअली वेंडर्स आते हैं, वो अपना लेटेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो उनकी लेटेस्ट कलेक्शन हो वो ही लाते हैं। ठीक है, वो कोई अपना पुराना सामान तो लाएंगे नहीं, Right. द न्यू स्टफ देयर क्रिएटिंग वो ही लाते हैं। Hmm. तो उसका होता है कि हमें वो इमेजेस वगैरह शेयर करते हैं राइट, बिफोर बुकिंग booth, and then there's a team that looks around the images and okays them. अगर वो Okay. team okay कर देती है, then that's how we get them on board. ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो इमेजेस वगैरह दे सेंड ऑन द On व्हाट्सएप? ओके, जी। इंटरेस्टिंग। That's why our WhatsApp is always buzzing. There's always 100 messages on the WhatsApp. ओके, तो क्यों वो देते रहते हैं सारी देते इंफॉर्मेशन रहते हैं। आपको कि ये है, ऐसे है, जी, वैसे जी, है। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो
एक एम्बियंस के लिए भी लोग आते हैं ना, एक तो वेंडर्स के लिए तो आते ही आते हैं, बट एक एम्बियंस के लिए लोग आते हैं, तो हाउ डू यू क्रिएट दैट एम्बियंस कि वो एम्बियंस कितना वेलकमिंग होना चाहिए? क्योंकि आपके इवेंट्स पे मैंने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाला एलिमेंट नज़र आए, लेकिन होती है बहुत ज़्यादा, तो वो कैसे आपने सटल बिहेव करवा रही हैं? हाउ डू यू मैनेज दैट? So, एक तो number one, most of our security is at the ticket counter and around the area. Like ठीक है। ये नहीं है कि जितने भी मेरे guards और bouncers हैं वो सब एक ही जगह खड़े हो जाएं, कि उससे लोग जरा घबरा भी जाते हैं जब वो 20 गार्ड्स को देखेंगे, उनको समझ नहीं आएगी यहाँ क्या हो रहा है। तो हमारे डिफरेंट जगहों पे, और कुछ हमारे गार्ड्स होते हैं जो नॉर्मल कपड़ों में घूम रहे होते हैं, अच्छा, इनसाइड जहाँ इवेंट चल रहा है, राइट, ताकि वो गार्ड्स को तो देख के कोई भी जरा अलर्ट और डर जाता है। तो कुछ हमारे ऐसे बंदे होते हैं जो नॉर्मल कपड़ों में एज अ बायर और एज अ ऑडियंस घूम रहे होते हैं। तो एक तो नंबर वन आई थिंक ये आउटडोर हमारा एक सेट हो गया है कि आउटडोर इवेंट या मार्की में हमने नहीं करना, राइट। तो वो आउटडोर की इन इट सेल्फ एक वार्मथ और एक एम्बियंस सेट हो जाती है। उसके बाद वी प्ले अ लॉट विथ लाइट्स, एंड देन हमारे जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं हम उनको कोई थीम दे देते हैं, राइट। जिस तरह ईद से पहले हमारा ईद बाजार होता है, तो देन उसकी जो डेकोर होती है वो ईद टाइप होती है, जिस तरह देयर विल बी स्टार्स एंड मून्स, एंड जो लाइटिंग होगी वो जरा ईद रिलेटेड, ठीक है। फिर हमारे क्रिसमस बाजार होता है, उसमें हम रेड एंड देयर क्रिसमस ट्रीज, देयर सांता क्लॉज, द होल डेकोर इज क्रिसमस, राइट। तो उस तरह एक बड़ा आउटडोर एक वार्मथ टाइप आ जाती है पूरे इवेंट में। ओके, तो उसके अंदर कोई आप थर्ड पार्टी एंगेज करते हो या यू डू इट योरसेल्फ? So initially I was doing it myself, but now as we're growing we do hire people to do not for all the events but some events. Some events they do the theme and everything. So you have a specified budget for that thing. Yes. जो टेक्नोलॉजी आपको पता है हर बिजनेस के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, सो आपके बिजनेस को भी कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑडियो विजुअल्स हैं, कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, कोई लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो ये वाले एलिमेंट्स क्या आपको कंसिडर करने पड़ते हैं या कंसिडरेशन में है, अभी यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे? So for now though we have professional photographers that cover the event, and हमारी different ये news channels आके event cover करते हैं, ठीक है। For other audio visual equipments and all, like I said, we do want to eventually expand and have proper entertainment on board, जिसमें कोई singer आ जाए या कुछ, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है I'll have to get very like extremely high end किस्म का music sound system and proper like a stage and all. वो अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी हमारा budget नहीं है, but eventually in the future we do plan on investing more in this. Okay. तो ये जो विजन आपने अपना बनाया है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 years का आराम से आपने 10 साल का बनाया हुआ है, एंड यू आर फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी एज पर दी, जैसे मार्केट चेंज होती जा रही है वैसे वैसे आप उसको अवेल करते जा रहे हो। ओके, दैट्स वेरी वेरी हार्टनिंग टू नो कि कोई ऐसा शख्स है जो 10 साल की प्लानिंग के साथ मेरे साथ बैठा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश तो है बिकॉज लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द यूथ ऑफ टुडेज एरा वो कहते हैं कि लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर मी आल्सो लिखना इज इम्पोर्टेंट एंड इट हेल्प्स यू अचीव योर टारगेट्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मीडिया के साथ आपकी बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है, कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स आपने डिफाइन किए हैं? क्योंकि आपको पता है प्रेस एंड मीडिया के जितने भी लोग हैं उन्होंने तो अपने हिसाब से लिखना है, तो कोई प्रोटोकॉल्स आपने डिज़ाइन किए हैं कि ये वाली इन्फॉर्मेशन इस तरीके से जानी चाहिए? आप अपनी प्रेस रिलीज़ बनाते होगे क्योंकि आपको पता है डिफरेंट प्रिंट में भी आप जाते हो और ऑन द अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी आप जाते हैं, तो कोई प्रोटोकॉल्स बनाए हैं प्रिंटिंग? क्योंकि इवेंट्स, हाई एंड इवेंट्स या और एनी एक्सपोज, उन सब के लिए उनका जो इम्पैक्ट ऑन द सोशल मीडिया या जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो उसका प्रोटोकॉल किस तरीके से बनाया आपने? If you're talking about the media people that we hire or we get on board, उनके लिए तो basically before the event हमारा media passes जाते हैं। हमारी already जो team है वो let's say Jio या Dawn, इनसे already पहले से
ऑर्गेनाइज कर लेगी कि ये हमारा इवेंट हो रहा है, आपने आके कवर करना है. ठीक है. एंड वी डोंट लेट एनी और एवरी मीडिया पर्सन वॉक इन, बिकॉज जब इस तरह इवेंट हो रहा होता है बहुत खुद ही आ जाते हैं कि ठीक है. ओ वी वांट टू कवर द इवेंट. Yeah. तो उस तरह हम नहीं करते. हम पहले से ही अपना जो हमें उस वक्त लगे कि हमने ये मीडिया चैनल हायर करना है, ठीक है. वो हम पहले से कर लेते हैं. और उसके हमारे मीडिया पासेस होते हैं जो उनको ऑलरेडी पहले से TCS या उनको दिए जाते हैं. Okay. तो व्हेन दे कम ऑन द डे वो अपने साथ वो पास पहन के आते हैं. ठीक है. तो देन दैट्स हाउ दे कम इन. ओके. तो जो कंटेंट वो प्रोड्यूस करते हैं, जो ज़ाहिर विजिट करते हैं, इज देयर अ टीम एंगेज जो उनके कंटेंट को वेट करे और उसके बाद? जी. So usually whatever they make, our team sits down and goes over it, and Okay. if it's looking fine to us, we okay it. If Okay. it's not, so we tell them कि आप ये चीज़ हटा दें या ये चीज़ जो ठीक आपने है. की थी ऐड कर दें, and then ठीक है. we work together. ओके, वेरी नाइस. क्योंकि सिलेक्शन आपने उस तरह की हुई है कि दे आर वेरी कोऑपरेटिव इन दैट Yes. मैनर. बिल्कुल. क्लाइमेट चेंज का ज़माना चल रहा है आजकल. जी. So under that scenario, we're talking about sustainability and then eco-friendly environment create करना. जी. तो वो उसके ऊपर क्या स्टांस है आपका? क्योंकि eco-friendly because ज़ाहिर है जी. वहाँ पे खाना भी है, तो बिल्कुल. पैकेजिंग भी करनी है लोगों ने. जी. जैसे आप खुद इसके ऊपर काम कर रही हो या you will collaborate with somebody, जैसे disposable एग्जाम्पल है कि disposable plates हो गए या disposable eating यूटेंसिल्स जितने भी हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल बन रहे हैं. छोटे छोटे स्टार्टअप्स जी, हैं जी, जो इसके जी. ऊपर काम करें. जी. तो वुड यू बी वेलकमिंग टू दोस पीपल? 100%. हाँ, बिकॉज दे आर डूइंग इट एंड इट्स वो इट्स बायोडिग्रेडेबल. जी, जी, सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. 100%. या सो डू यू थिंक कि वो प्राइस एब्जॉर्ब कर लेंगे जो लोग उसको यूज़ करेंगे? अभी वही हमारा, बिकॉज यही हमारी स्ट्रैटेजी में है कि हमने ये अपने वेंडर्स को किस तरह समझाना है. क्योंकि जी. टू बी ऑनेस्ट द masses don't even know कि पर मतलब as a human हमारा कितना impact है on Right. climate change and the environment. ज़्यादातर को पता ही नहीं है कि as a human how much can you do to be a more I would say not reasonable but a more progressive towards like climate change. Because they feel कि ये इसमें हमारा कुछ है ही नहीं, हमने तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. ये तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो कर रहे हैं ऊपर से कि किसी उनको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि एज अ पर्सन अगर वो लेट्स से प्लास्टिक ना यूज़ करें या रिन्यूएबल एनर्जी करें या मतलब ये तो जरा आगे हो गया. इसके लिए यू हैव टू बी अ हार्डकोर क्लाइमेट चेंज पर्सन. कि आप वीगन बन जाओ, ये तो फिर बहुत ही आगे चले गए आप. ठीक है. लेकिन आप अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड एट योर कंपनी लेवल आप लोग अभी भी इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं. एक्चुअली मोर देन दैट मुझे ये है कि आई बिफोर giving my vendors this कि आपने ये नहीं यूज़ करना, वो नहीं यूज़ करना. I want to have a talk in the event about environment and climate change. ठीक है. ताकि जो लोग हैं उनको आइडिया हो कि ये क्या हमें हार्म कर रहा है. ठीक है. और उससे फिर उनको एक ज़रा सा एक हिस्ट्री मिल जाएगी ना. अच्छा ठीक है नाउ दिस मेक्स सेंस, वी शुडंट बी डूइंग दिस. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. या ठीक है. बहुत ही खूबसूरती से आपने सारे एस्पेक्ट्स को वेट भी उसका इमेज बनाना, टारगेट ऑडियंस, वेंडर्स की इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, व्हाटएवर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द हाई एंड इवेंट आप जो ऑर्गेनाइज करती हो. आपके लास्ट थॉट्स लेना चाहूँगी इस चीज़ के ऊपर कि लास्ट थॉट्स क्या हैं कि सबीन अब्दाल एंड विंटरवेट फॉर द ऑडियंस एट लार्ज. I would honestly say that when I was starting, I didn't think it would become like an event that would be my identity, to be honest. Yes. Because it started off as such a one-off event that I never thought that this will turn into my passion. So I would really tell the youth here and everyone else that whatever they have in mind, they should give it a shot. Do what they can with all the passion they have, and if it fails, don't worry, try something else. Right. But something will work out for you. That's very interesting. Yes. Thank you very much, Sabeen, for sparing so much of your precious time. Thank you for having me over. Thank you audience for listening to this wonderful talk. सबीन ने बहुत ही खूबसूरती से ऑर्गेनाइजिंग हाई एंड इवेंट्स के सारे प्रोटोकॉल्स को कवर किया. प्लानिंग, आपकी वेंडर सिलेक्शन, फिर आपकी गेस्ट लिस्ट, फिर उसके बाद सिक्योरिटी के जितने प्रोटोकॉल्स हैं, फिर आपके डिफरेंट पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू PR एंड मीडिया,
हर एक एस्पेक्ट को, और कोई अनफोर्सीन इवेंट अगर आ जाता है तो उसको किस तरीके से केटर करना है। सो आप इस शो को जब पूरा सुनेंगे तो आपको एक इंसाइट मिल जाएगा कि कैसे अपने आप को एक हाई एंड पोजीशन करना है इन द मार्केट, क्योंकि इट्स सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं 10 सालों में। तो उसके लिए एक शी इज़ अ यंग पर्सन डूइंग बिजनेस फॉर लास्ट 10 years एंड प्लानिंग उन्होंने भी की, लिखा उन्होंने भी, और बहुत ज़रूरी है कि ये सारे पैरामीटर्स को हम कवर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिस्कनेक्ट विद नौरीन गफ्फार। विल मीट अगैन विद अनदर एपिसोड।